بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ کے لیے معدہ، جگر اور مثانہ کے گرمی کے بارے میں معلومات اور اس کا فرق کے بارے میں اور اس کا علاج کے بارے میں معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بھائی صاحب میرے دواخانہ پر آتے ہی سوال کرنا شروع کر دیا، معدے کی گرمی کیا ہوتی ہے، جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے، مثانے کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس سے کافی گفتگو ہوئی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی معدہ، جگر اور مثانے کی گرمی کے بارے میں فرق بتاؤں۔ اگر آپ کو ایسی ویڈیو کا ایسی معلومات درکار ہے تو میں امید رکھتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوگی۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ رہے ہیں چینل حکیم سندروی کو۔ اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کے مقصد کی طرف۔ معدہ کی گرمی کے باعث، اگر معدے کے اندر گرمی ہو جائے تو پھر منہ کے اندر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا دانتوں کے جڑوں میں یا منہ کے اندر اوپر نیچے چھالے سے بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ معدے کی گرمی کی وجہ سے منہ کا ذائقہ جو ہے وہ کڑوا کڑوا سا رہتا ہے۔ میرے پاس 2 دن پہلے ایک بھائی صاحب آئے، وہ علی گڑھ ہائی اسکول کے ٹیچر تھے۔ وہ جب میرے ساتھ آ کر انہوں نے سلام کیا، میرے پاس ہی بیٹھے، تو جو بھی وہ بات کر رہے تھے ان کے منہ سے اتنی سمیل آ رہی تھی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ سر آپ کو کیا مسئلہ ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ اکثر دوستوں کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ کئی دوستوں کو اتنی زیادہ آتی ہے کہ جو ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اس کو بہت ہی ناگوار گزرتی ہے۔ آپ نے ایسے بھی دوست دیکھے ہوں گے، ان کے پاؤں اور ہاتھ جو ہیں وہ جلتے ہیں۔ وہ یہاں تک کہ بالٹی میں یا کسی برتن میں برف والا ٹھنڈا پانی ڈال کر وہ پاؤں اس کے اندر رکھ لیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہاتھ پاؤں جلتے ہیں یا پھر پاؤں کی ہتھیلیوں پر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پہ پسینہ آتا ہے، یا پھر ہاتھوں اور پاؤں کی ہتھیلیوں سے آگ سی نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، آنکھیں جلتی رہتی ہیں، آنکھوں سے سینک نکلتا ہے، دماغ کے اندر تپش ہوتی ہے، تو میرے بھائیوں، اس کا یہ کیوں ہوتی ہے؟ یہ معدے کی گرمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یہ ہے معدے کا گرمی۔ اب ہم چلتے ہیں جگر کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ جگر کی گرمی ہے یا معدے کی گرمی ہے یا مثانے کی گرمی ہے؟ تو میرے بھائیوں، جگر کی گرمی میں جسم میں صفرا کی زیادتی پائی جاتی ہے۔ ناخنوں اور آنکھوں کی رنگت جو ہے زرد دکھائی دیتی ہے۔ جلد، یہ جو جلد ہوتی ہے، اس کا کلر، چہرے کا کلر، آنکھوں کی سفیدی
के अंदर जर्दी मैल, पीलापन नज़र आना शुरू हो जाता है। चेहरे के ऊपर झरियाँ सी भरपूर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाती है। तो मेरे भाइयों, मैंने आपको मैदे और जिगर की गर्मी के बारे में आपको बता दिया है। अब आते हैं मसाने की गर्मी। तो मेरे भाइयों, कई ऐसे दोस्त देखे हैं, उनको मसला कुछ होता है, वो आकर कह देते हैं कि हकीम साहब मुझे मैदे की गर्मी है, मसाने की गर्मी है। और भाई पहले अपनी, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, पहले अपनी मर्ज़ की तशख़ीस किसी तबीब से करवाएं, खुद मत करें। आप अपनी तकलीफ़ बता दें, आप हमारे दवाखाना पर आएँ, अपनी नब्ज़ शनासी करवाएं, इंशाअल्लाह हम बताएंगे आपको आपकी मर्ज़ की तशख़ीस। मेरे भाइयों, मसाना की गर्मी में छोटा पेशाब जो होता है वो जल कर आता है, जलन भी होना शुरू हो जाती है अगर आपने पानी का इस्तेमाल इंतहाई कम कर दिया है। एक तो गर्मी का मौसम इतना है। आज एक मेरे पास भाई साहब आए, कहते हैं कि हकीम साहब मुझे मसाने की गर्मी है। तो मैंने कहा भाई घर से कब से निकले? भाई मैं सुबह से निकला हूँ, मैं वहाँ गया। किस्सा मुझसे उसने मुझे बताया कि मैंने जब से घर से निकला हूँ पानी का एक घूंट भी नहीं पिया। मेरे भाइयों, गर्मी का मौसम है, एक अपने सर के ऊपर कोई कपड़ा वगैरह रखो अगर धूप में निकल रहे हैं, और घर से निकलते वक्त एक पानी की बोतल अपने साथ ले लें, उसके ऊपर कपड़ा लपेट कर रख लें, बर्फ़ वाली बोतल ले लें, वो 3-4 घंटे आपके निकल जाएंगे। मेरे भाइयों, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। और अगर आपका पेशाब चल कर आ रहा है, जलन हो रही है, या फिर पेशाब के साथ कतरे आते हैं, तो मेरे भाइयों समझ लो कि आपके मसाने के अंदर गर्मी है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब भी ठोक कर जाइएगा, लाइक भी ठोक कर जाइएगा, और अगर आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन भी दबा दें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरी मिलता रहे। मेरे भाइयों, आखिरी मेरी आपसे एक बात है, कोई भी दवा या नुस्खा अपने तबीब या अपने मालिज के मशवरे के बगैर इस्तेमाल ना करना। आपने मेडिकल स्टोर से एक छोटी सी भी कोई डबिया भी ले लें, कोई छोटी सी दवा भी लें, तो उसके ऊपर लिखा होता है दवा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो मेरे भाइयों, हम इस तरह के लोग हैं, फेसबुक पर, यूट्यूब पर कोई नुस्खा देखा, बना लिया। मेरे भाइयों, ठीक है बनाएं, लेकिन पहले अपनी मर्ज़ की तशख़ीस तो करवा लें, पहले अपने मालिज से मशवरा तो कर लें, पहले अपने तबीब से रब्ता तो कर लें कि क्या ये वाला नुस्खा मैं तैयार करूं तो मुझे नुकसान तो नहीं देगा, मुझे फ़ायदा देगा। मेरे भाइयों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो कम अज़ कम 10 दोस्तों को आपने फॉरवर्ड ज़रूर करनी है, ताकि कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन फेसबुक पर या इस तरह के नुस्खे देखकर अपनी सेहत का कबाड़ा ना कर ले। हाँ, बनाओ, हर अज्जा के बारे में, उसके मुफरदात के बारे में पहले पढ़ो, क्या वाकई इस मर्ज़ के लिए है। एक मेरे पास भाई साहब आए, कहते हैं कि हकीम साहब मुझे कब्ज़ हुई पड़ी है, मुझे कब्ज़ की गोली दे दो। मैंने कहा भाई
आपने इलाज करवाना है या सिर्फ गोली लेनी? नहीं, बस मुझे एक दो गोलियां दे दें। मैंने उसको 6 गोलियां दे दी। वो घर गया, उसने 2 गोलियां खा ली। मैंने कहा था कि 1 गोली खानी है, तो उसका पेट खराब हो गया, पहले था और हो गया। फिर उसने 1 गोली और खा ली, उसका पेट और ख़राब हो गया। फिर उसने कहा कि मुझे तो आराम नहीं आ रहा, तो उसने 2 गोलियां और खा ली, और उसको इतने वाशरूम आए, इतने मोशन आए कि वो वाशरूम से निकलता फिर मोशन। तो मुझे उसने फ़ोन किया, रात का टाइम था। मैंने कहा भाई आपने तो मुझे कहा था मुझे कब्ज़ है। कहता मुझे कब्ज़ ही हुई है। मैंने कहा मेरे भाई आपको मोशन लगे हुए हैं, आपका पेट खराब हुआ पड़ा है, पेचिस लगे हुए हैं। आप जब को इसके बारे में इल्म ही नहीं कि आपको मोशन लगे हैं, पेचिस हैं या कब्ज़ है, तो आप ऐसे ही दवाइयाँ ले रहे हैं। उस वक़्त तो आप बहुत बड़े अपने आप को फ़िलासफ़र समझ रहे थे। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। मेरे भाइयों, जब तक आपको किसी मर्ज़ की समझ ना आ जाए उतनी देर तक आपने कोई भी दवा तैयार करके नहीं खानी। अगर आप दोस्तों को हमारी ये बातें, ये गुफ्तगू अच्छी लगी है तो आप मेरे भाइयों दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर 5 या 10 दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, फॉरवर्ड करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। जो दोस्त बीमार हैं, अपना इलाज करवाना चाहते हैं, हमारे दवाखाना पर तशरीफ़ लाएं। इंशाअल्लाह वो मायूस नहीं होंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।